की कॉफी के जैसा। मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। एटलीस्ट आई नॉट रिग्रेट इन माई लाइफ कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो कर लेती तो मैं वो हो जाती, ये कर लेती तो मैं वो हो जाती। एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, यही जो है सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। सी माय फ्रेंड्स, ये चश्मा क्यों लगा और ये दवाई दिन में 3 बार क्यों डालनी पड़ती है आँख में। और so yes, if you want to know about my journey from starting to from now, so watch this video till then. Okay, so hello friends, my name is Sonia Singh and I'm from Uttar Pradesh, and recently I have done my graduation from bio, or now you can say I am a learner of English language. But yes, it has been since last 6 years ago. Since then I started my learning this language. So now you can say as well I have learned a lot of things in English. But yes, you can also say like I am also a learner and still I am learning this language. But it has been since last 1 year ago when I started preparing for UPSC civil services exam. Okay, or as well as I took exam for SSC, you know. Okay, but how I moved to learn English language, how and why I quit to preparing for UPSC civil service exam and SSC exam, you can also say. Okay, so yes my friends, I have studied in Hindi medium till 12th class, or after completing 12th, when I took admission in BSc from bio, then all subjects, you know very well, like all subjects were in English language. Okay, so even if I took exams in English language, but that time I couldn't speak in English even a single sentence. Okay, that time I could understand English very well. I could read, I could write, and I could understand English and Hindi translation also. But when it came to speak in English, then I couldn't speak in English. Okay, or so yes, it has been since last year. Okay, so when my graduation completed, when I completed my graduation, then I applied form to take admission in MA. Okay, but due to some reason my exam, my admission form was cancelled due to some reason. I don't know why this happened, why and how this happened, but yes, my admission form was rejected. Then I thought I should learn English language, or then I started, you can say. It has been also since last year ago. Okay, then I started learning this language, or but yes, I didn't try to learn English language with consistency till 6 months. But 6 months ago I started learning this language with consistency. So now you can say, and I can also say, I have learned a lot of things in English, or now I can speak English very efficiently and fluently. Okay, so how and why I choose to learn to speak in English. Okay, so yes my friends, if I talk about my journey of preparing for UPSC, or it can be SSC. Okay, so first of all let me show you some things. Okay, so yes my friends, I'll show you my books because maybe you don't believe me. Okay, so ये तो बनता है कि मैं आपको अपनी बुक्स दिखाऊं, और so yes, first of all let me show you. पहला मैं आपको दिखाती हूँ कि एसएससी के लिए मैं क्या क्या तैयारी, यूपी पुलिस के लिए मैंने
तैयारी करी, एग्ज़ाम भी दिया। तो हो सकता है कि अगर आपने तैयारी ना करी हो तो ना जानते हो, बट हाँ, इनको तो जानते होंगे। अंकित भारती सर, और ये उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ इसमें दिया है। तो ये मैंने स्पेशल जो है उत्तर प्रदेश, ये मैंने स्पेशल यूपी पुलिस के लिए लिया था। यूपी पुलिस में मेरा जो है उसमें शायद 150 क्वेश्चन, हाँ 150 क्वेश्चन थे उस समय। तो मेरा उसमें 98 क्वेश्चन सही था। और मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा नाम भी है और रोल नंबर भी है। यहाँ पे मैं आपको अंदर भी खोल के दिखा सकती हूँ मैंने कैसे कैसे किए हैं। टिक भी लगे हुए हैं, देखिए इधर देखिए। तो मेरा इसमें 98 क्वेश्चन सही था, और बट नहीं हुआ उस समय तो। हाँ, उस समय जो था वो एग्ज़ाम जो है रद्द हो गया था। दोबारा से जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ देन मैंने नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो मेरा जो मार्क्स थे अच्छे थे, लेकिन जब सेकेंडली हुआ तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। और ये तो हुआ फॉर्म मेरा यूपी पुलिस का। और भी फॉर्म है जो मैंने एसएससी में एमटीएस का दिया था और एसएससी सीजीएल का दिया था। एक साल में, एक ईयर में मैंने 3-4 एग्ज़ाम्स दिए। बट क्वेश्चन नंबर जो थे, मार्क्स थे अच्छे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊँ। ठीक है, तो 1 ईयर में मैंने किया। बट हाँ, इफ़ आई ट्रूली से तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करी, बस मैंने बट मैंने उसका एग्ज़ाम नहीं दिया। तब तक उसके आगे हुआ क्या, क्यों मैंने क्विट किया, कि मैंने बताया कि मेरा जो है एमए एडमिशन वाज कैंसिल्ड। तो मैंने उसके लिए कुछ सीरीज़ ली थी, ये सीरीज़ ली थी। बुक्स तो मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत सारी मोटी-मोटी होती है। मैंने सीरीज़ ली थी तैयारी करने के लिए। बाकी चीज़ें आजकल फ़ोन पे भी अवेलेबल हैं, तो मैं फ़ोन से देखती थी अधिकतर। बाकी मैंने सीरीज़ ली थी। ये देखिए, अवध सीरीज़। इसमें हाँ, इसमें तो इंग्लिश में ही है, बाकी बुक्स में इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहता है। तो ये है, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो बीएससी का है। ज्ञानोदय जूलॉजी का है, जूलॉजी की बुक है। बीएससी जब मैं खरीदी थी, बाय द वे बीएससी तो मेरा कंप्लीट हो गया। और मैं दिखाती हूँ आपको, अब जाना नहीं है फ्रेंड, वीडियो को पूरे वॉच करना। और ये भी मेरी आध्यात्मिक बुक है, इसमें मैंने कवर कर रखा है। ये बहुत पुरानी है, जब मैं 5th और 6th में थी तब की है। वो भी मुझे किसी ने दिया था। ये वाली मैंने नहीं खुद बाई करी थी, सॉरी, मैंने ट्राई किया। ये वाली मैंने खुद नहीं बाई करी थी, किसी ने मुझे दिया था। ठीक है, ये मैं दिखाती हूँ, श्री खाटू श्याम संपूर्ण चरित्र। ठीक है, तो ये भी मेरे आध्यात्मिक बुक्स हैं दोनों। बट ये मैंने खुद से नहीं खरीदी थी, ये मुझे किसी ने दिया था, मैंने संभाल के रखा है। जब मैं 5th 6th में थी, आप सोचो कितना साल हो गया होगा। ठीक है, तो आप मेरे स्ट्रगल को देखिए, मैं सिर्फ अपना स्ट्रगल दिखाना चाहती हूँ। लास्ट में इसका आप मुझे क्या फीडबैक देते हैं वो आप पे ये डिपेंड करेगा कि आप मेरे इतने साल की जर्नी को आप कैसे, आप फीडबैक आप मुझे देते हैं, क्या आपकी सोच रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपकी थिंकिंग होगी इसके प्रति आप ज़रूर फीडबैक में ज़रूर देना। और ये देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ मेरे नोट्स। मैं भी आपको वो बुक दिखाऊंगी ना जो यूपीएससी के लिए थी। ये तो हम मेंस आंसर शीट्स, यू कैन से इट्स अ नोटबुक। सो ये है नोटबुक। इंग्लिश मैंने कब स्टार्ट किया वो मैं अभी ये सब दिखाने के बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बुक दिखा, ये मेंस सॉल्व पेपर आईएएस दृष्टि का लिया था मैंने, ये आईएएस मेंस सॉल्व, ये भी मैंने पढ़ा। आपको सीधा शायद नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है ना। बट हाँ, आप यहाँ दृष्टि के लोगों से आप पहचान सकते हैं। और ये देखिए, ये प्रीलिम्स सॉल्व पेपर, ये भी दृष्टि का ही है।
इससे आपको क्या पता चल रहा है? और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिख के भी रखा था, इससे तो आपको साफ पता चल रहा होगा ना। संघर्ष यूपीएससी, कोई बात नहीं, यूपीएससी अभी नहीं है तो कम से कम मैं कुछ और तो कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं फ्री में बैठी हूँ ना, कुछ तो करना ही चाहिए लाइफ में, बिना कुछ किए लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। और हाँ, ये मैंने इंग्लिश लिया था, वही मैं तैयारी कर रही थी तब मैंने लिया। इसे तो सबकी लिए एसएससी, सीजीएल, प्री मेन, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीडीएस, सीडी, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, एफसीआई, एसएससी। और ये देखिए ये है मैप, इंडिया का मैप है ये, है तो बहुत अच्छे बड़ा, पूरा नहीं दिखा सकती मैं आपको खोल के दिखा, इतना आप समझ सकते हैं कि है ये मैप, ठीक है मैप। और ये भी कुछ है इसमें, हाँ ये है भारत का संविधान, एक ही पेज में, इतने बड़े से पेज में पूरा लिखा हुआ है। तो मैंने सब स्टिक करके रखा था रूम में एक वॉल पर। बट वो मेरा रूम जो है ना, प्लस का नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। तो उसमें पता है क्या, चूहा बहुत सारे आते थे, देखिए यहाँ पर, इसका सबूत भी मेरे पास है। इसने कट दिया, यहाँ पर कट कर दिया, ये देख क्या हाल कर दिया चूहे ने। तो इसीलिए मैंने वहां से इसको निकाल लिया और अच्छे से सेफ्टी मैंने रख दिया। और तो ये था मैप। और ये भी एक बुक से मेरे पास यहाँ पर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट सी, हाँ ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मैंने जो है ट्रिपल सी भी कर रखा है, 6 मंथ का कोर्स होता है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर फील्ड में, हाँ बट हाँ थोड़ा बहुत जानकारी है। अगर मैं उस फील्ड में कुछ करती हुई तो शायद और नॉलेज बढ़ जाती, बट मैंने कुछ किया नहीं ना, तो धीरे धीरे अगर कुछ हम करना छोड़ देते हैं तो नॉलेज भी कम हो जाती है। तो ये था उसका प्रैक्टिस सेट। बुक भी है, बट बुक शायद यहाँ पर नहीं है, दूसरे रूम में रखी हुई है। और अब मैं अगर इंग्लिश का आपको बताऊँ, ये सब कुछ जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, दूसरा साल था ग्रेजुएशन का, देन मैंने तैयारी शुरू करी थी। तो पूरा 1 साल तक किया, मेरा एग्ज़ाम 1 बाय 1 एग्ज़ाम हुआ। पहले एमटीएस कर दिया, फिर एसएससी सीजीएल कर दिया, फिर एक बार और मैंने फिर यूपी पुलिस का दिया था। फिर उसके बाद में मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यू कैन से एमटीएस, मल्टीटास्किंग, तो लास्ट टाइम मैंने वो दिया था। और जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम मेरा होने वाला था, पर उस समय ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। बताइए क्या हुआ। यूपी पुलिस में दिया, उसमें तो अच्छे नंबर आए थे, बस सेकंड चांस भी मिला था। पहले जो मैंने दिया वो रद्द हो गया, और दूसरा चांस भी था पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि यूपी पुलिस में बॉडी भी उस तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैं शायद बना भी रही थी, लेकिन उस समय पढ़ते पढ़ते मेरे आँखों में इतनी सारी दिक्कत आ गई कि इस आँख से एक आँख से पानी आता था दिन भर, दिन रात ऐसे। तो ये हाल हुआ। और पुलिस में तो ऐसे बच्चों को सिलेक्ट नहीं करते, लास्ट स्टेज पे जाके इतनी 2-3 इंच अगर कम पड़ जाए लंबाई में तो वहाँ से तुरंत निकाल देते हैं। सोचो, इतना सारी स्टेज पार्ट करने के बाद में अगर लास्ट स्टेज पे कोई निकाल दिया जाता है, सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है, तो कितना वो अपसेट होता होगा। तो इसको सोचकर मेरे घर वालों ने भी मना किया, फिर मैंने भी कुछ सोचा, फिर छोड़ दिया। फिर उसका छोड़ा तो सारा समझो एसएससी का भी छूट गया, और यूपी पुलिस का तो गया ही गया चांस, उसमें तो एज भी होती है उसके बाद गया। और ऐसे उसे करते घर वालों ने भी मना कर दिया, फिर पता नहीं क्यों मेरा भी मन ऐसे थोड़ा ऐसे हुआ, मैंने छोड़ दिया। और यूपी का तो मेरा लास्ट था, चांस भी था, और बाद में इसमें मैं दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें एज जो है, एज लिमिट शायद गर्ल्स का है 23, और बॉयज़ का है आई डोंट नो, मे बी 21, यस एम आई राइट, यस 21 और 23। बट जब मैंने पेपर दिया था पहली बार, तो उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी वो शायद 5 साल बाद आई थी, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से।
तो ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने एसएससी का भी छोड़ दिया और यूपी पुलिस तो गया ही गया। और देन मैंने यूपीपीएससी का मेरा एडमिट कार्ड आया था, पर नहीं दिया। मेरी आँख का हाल बहुत बुरा हो गया था, इस तरह कि मैं ना पढ़ पाती थी कुछ, और लिखने बैठती थी तो ऐसे जैसे लगता कि कोई रो रहा हो, ऐसे आंसू गिरते थे। और फ़ोन भी नहीं देख पाती थी, फ़ोन में ऐसे देखने से तो और पानी आता था आँखों में। फिर जो है क्या था, फिर वही डॉक्टर ने दिखाया मैंने, और फिर उन्होंने बताया कि जैसे फ़ोन ज़्यादा मत देखो। और फिर मुझे अच्छे से पता था क्योंकि मैंने ज़्यादातर पढ़ाई फ़ोन से करी थी। बुक से मैंने कम पढ़ा क्योंकि बुक में मैंने कोई क्वेश्चन देखा और उसको अच्छे से समझने के लिए मैंने फ़ोन में सर्च किया, देन मैंने सुना। क्योंकि कहते हैं ना कि जो लिसनिंग होती है, लिसनिंग पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा हम सुनते हैं वो बहुत जल्दी कैच करता है। बट मैंने गलती कहाँ करी थी, मैंने लिसनिंग तो किया लेकिन मैंने वॉच बहुत ज़्यादा किया। कि जो क्लास होती थी ऑनलाइन वो मैंने 1 बाय 1 मैं देखती थी, नोट्स भी बनाती थी। और मतलब मैंने डेली, और कभी-कभी तो ऐसा हुआ जब एग्ज़ाम नज़दीक था, मैंने दिन भर फ़ोन से देखा। दिन भर मैंने पढ़ाई करी फ़ोन से ही देख-देख के। तो 1 साल जब मैंने कंटिन्यूअसली मैंने फ़ोन देखा, उसमें मेरी आँखों की रोशनी कम हो गई, उसमें मेरी आँखें खराब हुई। ये तो मैं 100% श्योर कि उसी से हुआ है, मैं जानती हूँ, आई नो वेरी वेल। बट ये हो जाने के बाद मैं क्या कर सकती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, फ़ोन से ज़्यादा हम स्क्रीन देख-देख कर के हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लिसनिंग हम कर सकते हैं, अगर कोई नोट्स बनाना है तो हम बना लें एक बार, फिर दोबारा उस वीडियो को बार-बार वॉच ना करें, हम अपने नोट्स को हमें पढ़ना चाहिए। इससे और एक मेन चीज़ ये थी कि मैंने कभी गूगल्स नहीं यूज़ किया। जब आँख खराब हो गई, फिर जब मेरा बना, फिर अब यूज़ करना पड़ता है। तब मैंने नहीं देखा, तब मैंने नहीं ऐसे यूज़ की, तब मैंने ऐसे यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मेरी आँख अच्छी थी तब, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब ये हाल हुआ तो ज़रूरत पड़ी। फिर ऐसे-ऐसे करते फिर मुझे लगा कि जब आँखें नहीं अच्छी रहेगी ऐसे, तो फिर नौकरी लेके ऐसे क्या, मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लगे मन में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी घरवाले बोल रहे हैं वही ठीक है। फिर मैंने सोचा दूसरा मैं क्या चुनूँ, दूसरा मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि बॉडी हेल्दी हो जाए, उसके बाद में मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे चांस मिलेगा और सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा तो हो सकता है ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी। और यूपीएससी सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाना इतना आसान भी नहीं है जितना कि समझ लेते हैं हम कभी-कभी। तो हाँ, मैं जानती हूँ अच्छे से, और मैं बता रही हूँ, ऐसा मैंने सोचा उस टाइम। बट उस समय के लिए अगर मैं नहीं सोची तो पता नहीं मेरे आँखें बचती कि नहीं। तो ये सब था, फिर ये सब थी मेरी जर्नी जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। और इसी टाइम मेरा जो है वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी और मेरे जैसे ही लोग कर रहे थे, मतलब मेरे जैसे ही लोग लर्न कर रहे थे इंग्लिश और वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी, बट हाँ, यही था कि बोलने की हैबिट ही नहीं थी, कभी मैंने बोला ही नहीं, तो वही हैबिट नहीं थी। पर मैं इंग्लिश अच्छे से समझ लेती थी, राइट डाउन, लिखना, पढ़ना, बोलना, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना। और इंग्लिश स्टोरी थी जो उसका हिंदी में अनुवाद हिंदी में उसका मतलब निकलने में ये सब आता था। बस यही था कि जब बोलने की बात आती थी तो जो है हम जब बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज तो जो है स्टक हो जाते हैं, फंबल करने लगते हैं, तो यही प्रॉब्लम थी मेरे साथ भी। तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर मैंने फ़ोन में देखा कि कहाँ से कैसे क्या करना चाहिए, फिर मैंने स्टार्ट किया। ये रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर, और ये कवर मैंने बनाया हुआ है, ये एक मिठाई का है, मिठाई की डिब्बी का, तो मैंने इसका कवर बनाया था। और इसमें मैंने क्या लिखा है दिखाऊँ आपको? मैं आपको आप विश्वास नहीं करोगे। फर्स्ट टाइम मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस से लेकर के पूरा जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा उसका एक-एक छोटा-छोटा रूल्स से लेकर के बड़े-बड़े सारे जितने भी रूल्स होते हैं मैंने इसमें नोट किया। देखिए, मैं इसमें मैंने नोट किया, देखिए।
तो ये यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ स्मॉल एंड सिंपल सेंटेंसेस हैं, और मैं इसको आपको दिखा नहीं सकती अच्छे से क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है ना। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन किसकी कैसे होती है, यहाँ पे मैंने वो लिखे पहले, क्योंकि सबसे ज़रूरी प्रोनाउंसिएशन होती है। और यहाँ पे मैंने इतने सारे सेंटेंस फॉर्म किए, और जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, फ्रेजल वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, बट मैंने कुछ ही नोट कर रखा है। पर इंग्लिश बोलने के पर्सपेक्टिव से जो कुछ भी ज़रूरी होता है वो मैंने इसमें नोट किया हुआ है। अब बिलीव नहीं करोगे, इसमें मैंने पता नहीं कितने सेंटेंसेस फॉर्म किए हुए हैं, और क्या बोल सकते हैं, कंजंक्शन, एक एक कंजंक्शन मैंने इसमें राइट डाउन कर रखा है। और क्योंकि मैं देखो 1 सेकेंड, लेट मी कैमरा अपसाइड डाउन, लिटिल बिट अपसाइड डाउन, सी। तो ये देखिए, इधर से देखिए, क्योंकि एक पेज जो है ना वो उसमें लग रहा है जैसे कि पॉलीथीन जैसा, तो उसमें वो पेन नहीं चल रही थी, तो एक ही पेज में है। ये है सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, और वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब्स और एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे मैंने इसमें नोट डाउन कर रखे हैं। WH फैमिली मेंबर, ठीक है, फ्रेंड्स, और ये तो अभी एक करके मैंने सारे देखिए यहाँ, ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल मैंने, और सो, हेंस, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स वाई, दैट द रीज़न, सारे मैंने बहुत सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं। ऐसे ही नहीं कुछ मिलता है, इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे ही नहीं कुछ मिलता है, कुछ भी चाहे जो कुछ भी हम नया हम सीखते हैं उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसमें आपको पता है कितना पेज है, इसमें 250 पेज है इसमें, जो कि मैंने खुद सीजर से कट करके बनाया, कवर भी चढ़ाया मैंने। तो जब इतना मेहनत करने के बाद में मैंने इसमें राइट डाउन भी किया, इसमें मैंने नोट डाउन भी किया, और तो ऑब्वियसली इसका जो है प्रॉफिट होना ही चाहिए। प्रॉफिट तभी होगा ना, इसका ये भी नहीं कि मैं नोट डाउन करके रख दूँ, अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं करूँगी, पढ़ूंगी नहीं, इसको लर्न नहीं करूँगी, तो फिर कैसे इसका बेनिफिशियल होगा मेरे लिए? नहीं, कभी नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू रीड एंड विल हैव टू यूज़ इन आवर डेली लाइफ, ओके। और सो यस, ये था मेरा फर्स्ट नोटबुक ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज, फर्स्ट स्टेप था ये मेरा, ओके। और फिर ये देखिए, ये कुछ डिक्शनरी है इंग्लिश की, इतनी मोटी, बट आजकल डिक्शनरी का हम यूज़ इतना नहीं करते, कौन इसमें ढूंढने में बहुत समय लगता है, तो हम तुरंत फ़ोन में सर्च कर लेते हैं। बट हाँ, मैं दिखा रही हूँ कि हाँ मेरे पास डिक्शनरी भी थी, पहले मैं यूज करती थी, बट अब उतना नहीं। और इंग्लिश मैंने इससे भी कुछ पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश एक ही चीज़ है, चाहे इसे पढ़ो चाहे उसे पढ़ो, हाँ तरीका सब में अलग अलग होता है। और ग्रामर कॉन्सेप्ट की बुक है, ये मेरी नहीं है बाय द वे, ये मेरे भैया की बुक है तो इंग्लिश की ही ना, तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब में एक जैसा ही होता है, बस जो है वो तरीका अलग अलग होता है समझाने का। जैसे हर एक फैकल्टी का तरीका अलग अलग होता है, ऐसे बुक में भी समझाने का तरीका अलग अलग होता है, डिपेंड ये करता है कि हम किस टाइप का समझते हैं, ठीक है। और ये तो मेरी नोट बुक है इंग्लिश की, ठीक है, ये तो मैं आज कल लिख रही हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद में मैंने एक बुक और ख़रीदी थी, वो मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है, दिस डैड और पुअर डैड की बुक है, वो स्पेशल मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया था, ये रही। तो ये बुक मैंने स्पेशल इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए मंगाई थी कि मेरा जो है प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगी तो कुछ अच्छी जानकारी ही बुक से मिलती है। तो ये मैंने स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मंगाई थी, ऑर्डर किया था मैंने फ्लिपकार्ट पे, पर मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, झूठ क्यों बोलूँ, इसमें मैंने बहुत ही कम पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है जी। तो ये थी मेरी इंग्लिश की कुछ बुक, बट शायद मेरी इंग्लिश की कुछ जो और बुक्स हैं वो दूसरे रूम में हैं, बट हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं हैं अभी, और मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स भी नहीं पढ़ी है,
पर्सपेक्टिव फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, बट हाँ, मैं सोच रही हूँ कुछ न्यू बुक्स मंगाने के लिए, तो श्योर आई विल बाय। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जो भी बुक्स हैं, जैसे कि हमने बचपन से जैसे कि हम अपनी बुक्स पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश की, तो सेम चीज़ उसमें भी है। हमें जब कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें पहले सिंपल चीज़ों से ही स्टार्ट करनी चाहिए। पहले हम बुक्स मंगा के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो थोड़ा उसका लेवल दूसरी तरह होता है, तो हमें समझ में नहीं आते, और जब हमें समझ में नहीं आएगा तो हमें उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो पहले हमें सिंपल और शॉर्ट स्टोरी वीडियो इंस्पायर करे लाइफ में कुछ नया करने की। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आई एम सो थ्रिल्ड फॉर दिस कि ये वीडियो आपको लिटिल बिट भी इंस्पायर करती है कुछ नया करने की। सो जस्ट आई वुड से कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को मत देखना, जो भी आपको करना है आप स्टार्ट करना फ्रॉम टुडे, आप स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट करो। और परफेक्ट टाइम का वेट मत करना, क्योंकि परफेक्ट टाइम का आपका अपने आप कभी नहीं आता है। परफेक्ट टाइम तब होता है जब आप खुद परफेक्ट बनाते हो। ओके, सो माय फ्रेंड्स, हम वीडियो को अपने यहीं पर एंड करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो जस्ट आई वुड से कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्त, अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बिकॉज इफ़ यू डू सब्सक्राइब देन गेट मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। सो इफ़ यू डू सब्सक्राइब, so I can make more videos by motivation. Okay, so this way you keep supporting me. Or yes, so we'll meet in the next lecture. Or if you have any suggestion for me, then you can suggest me by comment below this video. Definitely I'll try my level best, भी अपना अच्छा प्रयास करूँगी। और सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और ईच एंड एवरी डे कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। ओके, so thank you for watching this video, or have a nice day. Bye.